I'm in Mainpuri in Uttar Pradesh tracking the campaign of Dimple Yadav of the Samajwadi Party for NewsX. Mainpuri Lok Sabha constituency is one of the 80 Lok Sabha constituencies of Uttar Pradesh. Mainpuri constituency is composed of 5 legislative assemblies: Mainpuri, Bhongaon, Kishni, Karhal and Jaswant Nagar. It has a population of 1.8 million. 15.44% of the population lives in urban areas, while 85% of the population is rural. Scheduled castes make up 19.71% of the population, 93.48% are Hindus and 5.39% are Muslims. In 2019, 1.7 million qualified to vote, of which 56.77% turned up. Mainpuri, a part of Lord Krishna's legendary Braj, was once under the rule of Kannauj before its division into petty principalities. Influenced by Mughals and Nawabs, the city flourished in music, dance and arts. Its rich culture is reflected in traditional crafts like wooden sculptures and chicken embroidery. Mainpuri boasts ancient Hindu temples like Shitla Devi and Bhimsen Mandir. Parks like Fulbagh and Lohia Park offer serene landscapes with green lawns and fountains. Renowned for the Saras crane, revered for marital fidelity, Mainpuri embodies a blend of history, culture and natural beauty. After Mulayam Singh Yadav's passing, Dimple Yadav stepped in and won the Mainpuri Lok Sabha seat, triumphing over the BJP candidate by a margin of over 2.8 lakh votes in 2022. Earlier, she secured the Kannauj Lok Sabha seat in the 2014 elections, defeating her closest opponent by 19,907 votes. In 2019 elections, despite contesting jointly with the Bahujan Samajwadi Party, she lost to the BJP's Subrat Pathak by a margin exceeding 10,000 votes. Dimple Yadav, born on January 15, 1978 in Pune, Maharashtra, is the second of 3 daughters of retired Indian Army Colonel Ram Chandra Singh Rawat and Champa Rawat, originally from Uttarakhand. She received her education in Pune, Bathinda, Andaman and Nicobar Islands and Lucknow's Army Public School. Graduating in Commerce from Lucknow University, she entered politics, contesting the Firozabad Lok Sabha bypoll in 2009, where she didn't succeed. She later won uncontested from Kannauj in 2012, filling her husband's vacated seat after he entered the Uttar Pradesh Legislative Council. Yadav became the 44th person in the country and only the 4th in UP since independence to be elected unopposed, as the 2 opposition candidates withdrew their nominations. This time the battle for Mainpuri is intensified in the Yadav Bastion seat, as the BJP has fielded Jaiveer Singh against Dimple Yadav. Mainpuri prepares for a big show of strength. As far as the eye can see, a wave of Samajwadi red sweeps across the city. The campaign trail is well and truly underway. And at the heart of it all is the lady of the hour, Dimple Yadav. All the bigwigs are up and about in Mainpuri today, and we catch up with Dharmendra Yadav, former Lok Sabha MP and the Samajwadi Party candidate from Azamgarh. हमारी लगातार उत्तर प्रदेश और देश भर की लोकसभा चुनाव कवरेज जारी है इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। हमारे संग जुड़ रहे हैं पूर्व लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव, जो इस बार मैदान में है आजमगढ़ से, मगर आजमगढ़ में अपना नामांकन करके सीधा आ गए हैं मैनपुरी डिम्पल यादव के लिए प्रचार करने के लिए और यहाँ की जनता और समाजवादियों से मिलने के लिए। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो जानना चाहेंगे कि माहौल आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप लगातार प्रचार बदायूं में भी कर रहे हैं, यहाँ मैनपुरी में आज हैं, आजमगढ़ में भी थे कल तक, तो क्या प्रभाव और माहौल आप देखने को मिल रहे हैं? ये क्षेत्र तो है ही। मुझे उम्मीद है कि इस बार सहारनपुर से लेके और आखिरी सीट बलिया तक एक तरफा लहर है इंडिया गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम की, और लोग ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे हमारे गठबंधन को, हमारी पार्टी को, और इस बार विदाई कर देंगे लोग बीजेपी के लोगों की। मैनपुरी में यहाँ क्या स्थिति है? आप यहाँ आज आए हैं डिम्पल यादव जी के लिए। डिम्पल यादव जी को बहुत बड़ी जीत मिली थी नेताजी के निधन के पश्चात जो उपचुनाव था, मगर इस बार बीजेपी ने मंत्री को उतारा है मैदान में, उससे फर्क पड़ेगा क्या? यही मंत्री पहले भी थे, मंत्री उस समय भी मंत्री थे जिस समय ऑलरेडी डिम्पल जी का बाई इलेक्शन था, और उस समय भी इस असेंबली को, जहाँ से वो विधायक हैं, 36,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे हम लोग। और इस चुनाव में मुझे उम्मीद है कम से कम 50,000 से असेंबली जीतेंगे
और पूरा पार्लियामेंट चुनाव कम से कम 4 लाख वोटों से आदरणीय डिम्पल जी यहाँ से जीत के जाएंगी और ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे। क्योंकि लोग मंत्री होने से वोट नहीं बढ़ता है, लोगों की दिलों से सेवा करने से वोट बढ़ता है। अगर इनसे पूछा जाए कि आपने मंत्री होकर सरकार में डबल इंजन ट्रिपल इंजन लगा के क्या किया है, तो लोग यहाँ के बता देंगे कि एक पिछड़े वर्ग की महिला जो हमारी चेयरमैन का चुनाव लड़ रही थी मैनपुरी से, जो कम से कम 10,000 वोटों से जीती थी, रात के 2:30 बजे तक बेईमानी करवा के समाजवादी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करा के उनको हरवाया गया है। आज वो वर्ग के लोग तैयार हैं बदला लेने के लिए भाजपा से। इन्होंने अगर कुछ किया है तो मैनपुरी के आसपास के लोगों के सताने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है इन्होंने और इनके गुर्गों ने। तो वो सब चीज़ों का मौका है लोगों को, और मंत्री लड़ रही हैं और अच्छा है, लोग सीधा जवाब देंगे। बधाई क्योंकि आपका गढ़ रहा है, आप खुद वहाँ सांसद रह चुके हैं काफ़ी साल, पिछली बार आप हारे थे चुनाव, इस बार क्या आपको लगता है लोग ने मन बदलने का मन बना लिया है वहाँ पे? इस बार आदित्य यादव हैं सामने, आपके रिश्तेदार हैं, इस बार बीजेपी ने संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है जिन्होंने आपको हराया था पिछली बार। आदित्य रिश्तेदार नहीं, आदित्य छोटे भाई हैं और रिश्तेदारी थोड़ी दूर चली जाती है, वो मामला नहीं है, घर का मामला है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, पिछली हार का आपको पता है, आप बदायूं होके लौटे हैं। पिछले चुनाव में जो स्ट्रॉन्ग रूम में तोता उड़ गया था, जैसा आदरणीय चाचा जी ने भी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कल की मीटिंग में वहाँ जिक्र किया, बेईमानी से मुझे हरा ज़रूर दिया गया था, लेकिन बदायूं के लोगों के दिलों से मुझे कोई नहीं निकाल पाया, और वो आज भी है। और उसका सीधा फ़ायदा पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे आदित्य को ज़रूर मिल रहा है। और निश्चित तौर पे जो सेवाएं रही सदैव नेताजी से लेके मेरे तक, और आदित्य चूँकि हम सबसे छोटे हैं तो और ज़्यादा लाभ उनको मिल रहा है। और बदायूं भी ऐतिहासिक जीतेंगे, मैनपुरी में तो इतिहास रचना ही रचना है। और मैं समझता हूँ बदायूं, मैनपुरी, आजमगढ़ या परिवार की सीटें छोड़िए, उत्तर प्रदेश के अंदर लहर चल रही है, संविधान बचाने की लोगों को चिंता है। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं क्योंकि देश के संविधान को जिस दिन खतरा हो जाएगा उसके बाद फिर कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए इस बार संविधान बचाने के लिए जनता निकल पड़ी है, और यही कारण है कि 400 पार का नारा देने वाले लोग अब उनकी भाषाएं बदल चुकी हैं। अब वो कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने लगे हैं वो लोग जो लोग 400 पार की बात करते थे। आजमगढ़ पे आते हैं, आजमगढ़ में आपका मुकाबला इस बार दोबारा निरहुआ से है। दिनेश लाल यादव को उपचुनाव में जीत मिली थी, तो वो अपना सेलिब्रिटी का जो स्टेटस है उसको कैश इन करते हैं। काफ़ी बार लोग जो फिल्मों से आकर्षित हो जाते हैं वो वोट भी दे देते हैं, तो क्या ये चुनौती है आपके लिए? आजमगढ़ के लोग बहुत जागरूक लोग हैं, मैं कह सकता हूँ राजनीतिक तौर पे आजमगढ़ के लोगों की सूझबूझ, आजमगढ़ के लोगों की दूरदृष्टि बहुत आगे है। और अभी नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इसलिए बात कह रहा हूँ, हमेशा जब कोई देश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आया तो आजमगढ़ के लोगों ने उस परिवर्तन की रूपरेखा लिखने का भी काम किया है। सेलिब्रिटी हैं, कलाकार हैं, लेकिन वो जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं बीजेपी की, उनको खुद भी नहीं पता उस स्क्रिप्ट के मायने क्या है। उनसे आपके पत्रकार साथियों ने पूछ दिया कि रोज़गार का मामला क्या है, कैसे बेरोज़गारी दूर होगी, तो उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया, वो शायद आपने सुना होगा। उन्होंने कहा बच्चे ही पैदा ना करो तो बेरोज़गारी घट जाएगी। तो ऐसी स्क्रिप्ट बीजेपी उन्हें देती है, और ऐसे ही कलाकार हैं वो स्क्रिप्ट का मंचन करते हैं, और करें वो अपने क्षेत्र में ज़रूर करें, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आजमगढ़ की जनता को लीडर की ज़रूरत है, एक सच्चे अच्छे वकील की ज़रूरत है जो समाज की, देश की परिस्थितियों की चीज़ों को समझे। आजमगढ़ के लोग संविधान बचाने की लड़ाई में बहुत अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं। आखिरी सवाल आपसे, एक जो कटाक्ष रहता है मगर वो लगातार यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि ये परिवारवाद के खिलाफ हम उतरे हैं, भाजपा उतरा है, और अमित शाह जी ने भी नाम लिए बदायूं में ही कि क्यों सिर्फ धर्मेंद्र को, अखिलेश को, अक्षय को ही टिकट मिलते हैं, बाकी यादवों को क्यों नहीं देखता सब सपा? देखिए, यादवों की चिंता तो इसलिए न करें, और वास्तव में अगर यादवों की चिंता है तो मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी और पूरी बीजेपी मिलकर बताए कि देश में कितने सचिव स्तर के अधिकारी यादव बैठाए हुए हैं, कितने पीएसयूज़ की पोस्ट पे बैठाया है, कितने मिनिस्ट्रीज़ में बैठाया है, कितने पीएमओ में बैठाया है, कितना प्रेसिडेंट हाउस में बैठाया है, या योगी जी ने सीएम ऑफिस में कितने लोग बैठाए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, डीएम, कप्तान, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी यादव बैठाया हो, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जो जरा भी अपनी मेहनत मजदूरी करके
जो इसने अपना सम्मान बढ़ाया था, तो आज सारे यादवों को जेल में डाल दिया, सारे यादव ईडी सीबीआई के रडार पे डाल दिए, सारे यादवों के इनकाउंटर हो रहे हैं, इसलिए वो यादवों की तो बात ना करें। As the rally continues through the streets of Mainpuri, we catch up with the candidate herself. डिम्पल यादव जी हमारे संग है। डिम्पल यादव जी, अपार प्यार और स्नेह यहाँ मिल रहा है आपको, क्या कहेंगे इस पे? मैं समझती हूँ लोगों का समर्थन, साथ और आशीर्वाद मिल रहा है, और मैं मैनपुरी के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। जिस तरह का साथ आज उन्होंने मुझे दिया है, मैं अपार दिल से उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी। हम बहुत सारी रैलीज कवर करते हैं, ऐसे नज़ारे बड़े कम दिखते हैं। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मैनपुरी के लोगों का। आपके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मैनपुरी की सांसदी? नहीं, जिम्मेदारी तो बड़ी है। We also caught up with the people of Mainpuri at their main market. हम इस वक्त मौजूद हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश के मेन बाजार में। वी विल स्पीक टू सम पीपल हियर टू ट्राई एंड गेज व्हाट द फीलिंग ऑन ग्राउंड इज। लोगों से बात करेंगे क्या विषय इस बार हावी हैं और क्या उनको लगता है दोबारा सपा को यहाँ से जीत मिलेगी या फिर भाजपा ये सीट को कब्जा कर पाएगी या नहीं। आपसे पूछेंगे साहब, आप यहाँ के निवासी हैं, क्या लग रहा है इस बार सपा दोबारा जीत दर्ज करा पाएगी यहाँ या भाजपा के चांसेस हैं? टक्कर है साहब, टक्कर है। तगड़ी टक्कर है साहब। इस बार बाकियों की तरह, बाकी चुनावों की तरह नहीं है। नहीं नहीं, बहुत। जयवीर सिंह टक्कर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब। आपका वोट किसको है, भाजपा को, सपा को? अब ये तो समय बताएगा साहब, जिसका मेन उसी को वोट देंगे। मेन विषय क्या है यहाँ के, समस्याएं क्या है यहाँ, स्थानीय समस्या सब सही है, कोई बढ़िया चल रहा है, विकास ठीक हो रहा है यहाँ? विकास हो नहीं रहा, सफाई ने किया और कोई नहीं किया। अच्छा, सपाइयों ने विकास नहीं किया यहाँ? सपा ने किया, सपा ने किया और किसी ने नहीं किया। अच्छा, विधायक से नाखुश हैं, सांसद से खुश हैं। हाँ समझ गया मैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ, आपसे पूछेंगे क्या लग रहा है सपा का कब्जा यहाँ बरकरार रहेगा या इस बार टक्कर है? बरकरार रहेगा। बरकरार रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ सपा को। वैसे विकास हो पाया यहाँ काफ़ी? हाँ विकास तो है। कुछ और लोगों से पूछते हैं यहाँ। यहाँ एक और सज्जन है यहाँ, आपसे पूछेंगे। आप भी कह रहे थे इस बार टक्कर है यहाँ, टक्कर की वजह क्या है? दोनों की टक्कर हो रही, जयवीर सिंह की और सपा की दोनों की टक्कर है, कोई पीछे नहीं, कम नहीं है। मतलब इस बार कुछ अलग है? इस बार कुछ अलग है। ये बताइए कि यहाँ कितना काम हो पाया है, यहाँ ज़मीनी स्तर पे समस्याएं क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं? इशू क्या है, पढ़ाई की है और मेडिकल की समस्या है। मेडिकल की समस्या सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। मेडिकल की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जो मेडिकल के लिए बाहर जाना पड़ता है, यहाँ मेडिकल के नाम पे जीरो है, कुछ नहीं मेडिकल के नाम पे। ये दिलचस्प, ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। आप बताइए साहब, आप भी यहाँ आए हैं बाज़ार में, आज आपसे पूछेंगे क्या बात आजकल बाजार में चल रही है, सपा की हवा है कि बीजेपी की? अब की बार बीजेपी की है, पहली बार मैनपुरी में बीजेपी की सीट निकलेगी। अच्छा जी, पहली बार। क्यों? क्योंकि सपा के गुंडों से मैनपुरी के लोग, व्यापारी जो है परेशान है। भाजपा में बिल्कुल गुंडा ही नहीं है, रात में लोग बाजार कर रहे हैं, रात में 11 बजे तक बाजार खुला है। सपा में 7 बजे लूट होती थी, व्यापारियों को गोली मारी जाती थी, यहीं पे पंचायत में व्यापारी पैसा और देता था वापस। आपका वोट तो भाजपा को जा रहा है? नहीं, मेरा नहीं, हम और भी। अच्छा, और भी लोगों का? जी जी ठीक है। हाँ अच्छा, ये युवा है यहाँ पे। हाँ युवा हैं, ये कह रहे हैं कि सामने नहीं आएंगे मगर इनका वोट सपा को जाएगा। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। मैडम आपसे पूछेंगे क्या लग रहा है यहाँ पे सपा की जीत होगी दोबारा या बीजेपी का चांस है? बीजेपी का है। बीजेपी का चांस है इस बार। आप महिला हैं, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ आपके लिए? फिलहाल तो बच्चों की जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए नौकरी जॉब वगैरह कुछ नहीं है। है नहीं, तो आपको लगता है बीजेपी सही कर पाएगी? As heat subsides, more and more people make their way to get a glimpse of the Samajwadi Party contender. We get invited on board the Samajwadi Party bus and catch up with the party supremo Akhilesh Yadav. हम इस वक्त मौजूद हैं मैनपुरी में। भव्य रोड शो हुआ है आज। इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर जुड़ रहे हैं पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, ऐसे नज़ारे बड़ी कम दिखते हैं राजनीति में, जैसे आज हमने मैनपुरी में देखा है। मैनपुरी समाजवादियों के लिए कोई नया नहीं है। मैनपुरी की जनता ने हर परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में नेताजी का साथ, समाजवादी पार्टी का साथ उन्होंने दिया है।
पिछला चुनाव जब बाई इलेक्शन हुआ था जिसमें सरकार इतना हावी थी यहाँ पर, उसके बावजूद भी जनता ने यहाँ लाखों लाख वोट से जिताया। इस बार जो जन समर्थन दिखाई दे रहा अभी तक न केवल जीत होने जा रही है मैनपुरी में, बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। और इससे रिश्ता कोई नया नहीं है, नेताजी को चुनकर के भेजा। यहाँ से धर्मेंद्र सांसद रहे, तेज चुनाव सांसद रहे। ये क्षेत्र वो है जहाँ नेताजी अपना शुरुआती दौर में राजनीति की है। इसी में घर है हमारा, जन्मे भी हम इसी लोकसभा में हैं। तो ये सब घर परिवार के लोग हैं जिनसे रिश्ता बहुत गहरा है और बहुत सम्मान का रिश्ता है। नेताजी के साथ रहे इन लोगों ने, और मैं तो ये देखा हूँ बचपन से कि यहाँ की जनता नेताजी को कहती थी आए चाहे ना आए, लेकिन वो वोट उतना ही देते थे नेताजी के आह्वान पर। आज डिम्पल जी भी सुलझी हुई नेता बन गई है, हम उनको देख रहे थे आज दिन भर। क्या कहेंगे उस पर, उनका जो ट्रांजिशन रहा है, क्योंकि आप शुरुआत से देख रहे हैं। डिम्पल के लिए कई चुनाव डिम्पल लड़ चुकी है और कभी हारी कभी जीती। और मैनपुरी क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा ये घर के लोगों का चुनाव, यहाँ से रिश्ता बहुत गहरा है और समाजवादी रिश्ता तो है ही है, लेकिन जो नेताजी ने भावनात्मक रिश्ता इस क्षेत्र से जुड़ा है, जहाँ नेताजी अपनी शुरुआती दौर में रहे, पढ़ाई की, इसी क्षेत्र में वो आगे बढ़े, इसी क्षेत्र में मुख्यमंत्री बने, इसी क्षेत्र से वो डिफेंस मिनिस्टर बने। तो डिम्पल के लिए क्षेत्र तो नया हो सकता है, लेकिन लोगों से रिश्ते वही पुराने हैं। मुझे उम्मीद है कि उन रिश्तों को पूरी ईमानदारी से वो निभाएंगे। आखिरी सवाल, बीजेपी जब कहती है कि नहीं इस बार कांटे की टक्कर है, वह दिन याद दिलाते हैं, कहते हैं यहाँ पे गुंडागर्दी होती थी और कहते हैं कि यादवों को भूल जाती है सपा सिवाय 5 परिवार वालों को। देखिए, गुंडागर्दी वो करेगा जो बुलडोजर लेकर के आएगा, जो बेरोजगारों के साथ और बेरोजगार बारात में शामिल होने आया होगा, वो कभी गुंडा नहीं हो सकता। गुंडे वो लोग हैं जो बुलडोजर लेकर के लोगों को डराना चाहते हैं। चुनाव आयोग को स्वयं इस बात को नोटिस लेना चाहिए था कि किसी कैंपेन को कोई बुलडोजर से कैसे डरा सकता है, वोटर्स को कैसे धमका सकता है। लेकिन यहाँ की जनता महान जनता है जो ऐसे बुलडोजरों से, ऐसे लोगों से डरने वाली नहीं है। जब मतदान होगा तो आप देखेंगे कितने बड़े पैमाने पर लोग मतदान करने निकलेगा। आप कहेंगे लोग मतदान देने आए क्योंकि पहले तो चरण में थोड़ा सा गिरा है, निकल के ज़्यादा लोग आएंगे और इस बार मतदान प्रतिशत भी ज़्यादा होगा। यहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। 2 चरणों में जिस तरह उन्होंने देखा है कि जनता ने उन्हें पलट दिया है, इस चरण में उनका सफाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। As a successful roadshow wraps up, Dimple Yadav can only hope that Mainpuri will shower her with the love it showed today, come voting day on the 7th of May. And that was the road stop in Mainpuri, Uttar Pradesh. All we could pack in for you on this episode with Dimple Yadav. We'll see you soon in another constituency with another leader.